जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों पार्टिसिपेंट्स आवाज आ रही है? वालेकुम जी सर, आ रही है। Okay. In the last lecture, we have learned about, we have started the new region of the lower extremity, that is the hip joint. जी participants, sorry, एक call आ गई थी. Okay. So in the last lecture, we have learned about we have started about, बल्कि this is section E ना बच्चों, ये section E है ना. So in today's lecture, we are going to start the new region, that is the hip joint. ठीक है. लास्ट टाइम हम लोगों ने एंड किया था अबाउट द हैंड एंड द रिस्ट जॉइंट. ठीक है. ऐसे ही है ना, हम लोगों ने लेसरेशन इंजरीज पढ़ी थी एक्सटेंसर टेंडन्स की. जी बेटा. जी बच्चों आवाज आ रही है पार्टिसिपेंट्स? Yes, sir. Okay. So let's I'm going to share the screen with you people. The new lecture, that is the lecture number 15. Now we are going to start this new region of the lower extremity, that is the hip joint. Okay. So as you all know that the hip joint is a joint which is going to be formed between the femur and the pelvic bone, and each pelvic bone is going to be formed with the help of, or with the union of, three different bones, that is the ilium, ischium and pubis. Now ilium, ischium and pubis have the acetabular fossa, which is a concave articular surface, and the femur has a femoral head which has a convex articular surface. Both of these articular surfaces combine or articulate with each other to form the hip joint. That is, the convex femoral head is going to articulate with the concave acetabular fossa to form the hip joint. Now, as you know that the distal bone is going to be mobile and the proximal bone is going to be fixed. Okay, so whenever the femur is going to be move, and the convex to concave rule is applied. Okay, convex to concave rule says whenever the hip joint is flexed, okay, the ruling will be in the same direction as that of the femoral bone, as femur is moving anteriorly in flexion, so the rolling of the femoral head is also in the anterior direction, but the gliding will be in the opposite direction, that is in the posterior direction. Now whenever the femoral head is whenever the femur is going to be moved in a posterior direction, the rolling will be the same as that of the femoral head or the femoral bone.
ठीक है, बट द ग्लाइडिंग विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द इंटीरियर डायरेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से एबडक्शन में बेटा इंफीरियर ग्लाइडिंग होगी और एडक्शन के अंदर क्या होगा, आपकी सुपीरियर ग्लाइडिंग होगी। सॉरी, एबडक्शन के अंदर आपके पास इंफीरियर ग्लाइडिंग होती है, तो एडक्शन के अंदर आपके पास क्या होती है, सुपीरियर ग्लाइडिंग होती है। ठीक हो गया। और अगर हम बात करें पेल्विस की, तो पेल्विस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि पेल्विस जो है डेट इज एन इंटरमीडिएट, और जो कनेक्ट कर रहा है ट्रंक को विद द लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, तो पेल्विस का पेल्विस इज इन क्लोज एसोसिएशन विद द हिप जॉइंट। ठीक है, मतलब हमने जब भी हिप जॉइंट को असेस करना होता है या हिप जॉइंट की किसी भी पैथोलॉजी को पढ़ना होता है, तो हमें साथ में पेल्विस को भी इंक्लूड करना पड़ता है, और अक्सर हमें लो बैक को भी इंक्लूड करना पड़ता है, दैट इज द लंबर रीजन एज वेल। ठीक है, सो ऑल दीज थ्री सिस्टम्स दे आर इंक्लूडेड। ठीक है, पेल्विस को यहाँ बताने का मकसद सिर्फ यही है कि पेल्विस जो है, अगर ऊपर से हम बात करें तो इट इज यूनाइटेड विद द ट्रंक थ्रू द लंबोसैक्रल जंक्शन। ठीक है, एंड इट इज यूनाइटेड विद द सैक्रम। ठीक है, विद द ट्रंक, यू कैन से दैट थ्रू द सैक्रोइलियक जॉइंट। ठीक है, मतलब लंबोसैक्रल जंक्शन बनता है, और सैक्रम जो है वो फर्दर फिर किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, विद द इलियम। ठीक है, टू फॉर्म द सैक्रोइलियक जॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से पेल्विस जो है वो अटैच हो जाती है ऊपर ट्रंक के साथ। ठीक है, और नीचे लोअर एक्सट्रीमिटी पे ये अटैच हो जाती है विद द फीमर। ठीक है, टू थ्रू द हिप जॉइंट। ठीक है, so that is why the pelvis is going to play an important role. ठीक है, now if we talk about the anatomy of the femoral bone, the femur has an angle of inclination, means the shaft of the femur has an inclination, means the neck is present at some angle, while the femoral shaft is present at another angle. ठीक है, this angle is going to be the angle of inclination. ठीक है, means कि the femoral shaft is inclined forwardly. ठीक है, with respect to the femoral neck. Now this angle is usually 125 degrees. Normally it is 125 to 135 degrees. ठीक है, it can be decreased or it can be increased. ठीक है, as a result of a pathology during newborn babies or in newborn babies. अगर ये जो बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें ये पैथोलॉजी आ सकती है कि इनका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और ये एंगल किसके दरमियान बन रहा है, नेक ऑफ फीमर के दरमियान और शाफ्ट ऑफ फीमर के दरमियान। नाउ देयर इज अनदर एंगल, दैट इज द एंगल ऑफ टॉर्शन। ठीक है, which is going to be formed between the femoral condyle and the neck of the femur. ठीक है, नाउ द femoral condyles they are present, ठीक है, अराउंड एट ट्रांसवर्स एक्सेस। ठीक है, और जो आपके नेक है, ठीक है, इट इज प्रेजेंट, ठीक है, एट अनदर एंगल एज कंपेयर टू द femoral condyles. ठीक है, now this is called the angle of torsion. ठीक है, and this is usually the average angle is between 8 to 25 degrees. ठीक है ना, ranges, और normally जो average angle है वो usually 12 degrees होता है। ठीक हो गया, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, अगर हम हिप जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो हिप जॉइंट जो है एक ट्राई एक्सियल जॉइंट है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। आप सबको पता है बॉल इसमें फेमोरल हेड है, और एसिटाबुलर फोसा जो है दैट इज अ सॉकेट, दैट इज एक्टिंग एज अ सॉकेट। एंड ट्राई एक्सियल जॉइंट मींस देयर आर थ्री एक्सेस अराउंड व्हिच द जॉइंट इज गोइंग टू बी मूव्ड, एंड देयर आर थ्री प्लेन्स at which the movement is going to be occurred. Now the hip joint is stabilized by a number of ligaments, जिसमें आपके पास काफी ligaments आ जाते हैं। ठीक है, वो हम आके आगे पढ़ते हैं, जैसे प्यूबोफेमोरल लिगामेंट है, एलियोफेमोरल लिगामेंट है, इशियोफेमोरल लिगामेंट है, वो हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं। ठीक हो गया, और हिप जॉइंट जो है ये इंटरलिंक करता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ थ्रू द सैक्रोइलिक जॉइंट और लंबोसैक्रल जॉइंट। ठीक है, सो हिप जॉइंट की क्लोज एसोसिएशन है विद द सैक्रोइलिक जॉइंट एज वेल, with the lumbar spine as well. ठीक है, through the lumbosacral junction. ठीक है, so that is an important point कि इसको आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपने हिप जॉइंट को असेस करना है तो आपको इन तमाम जॉइंट्स को असेस करना पड़ेगा। ठीक हो गया,
Now, if we talk about the stability, ligaments include the iliofemoral, ischiofemoral, and the pubofemoral ligaments. Now, the ischiofemoral ligament is all of these ligaments are going to stabilize the joint from excessive extension. ठीक है, मतलब ये excessive extension नहीं करने देते ये जितने भी ligaments हैं. ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आपके पास ischiofemoral ligament है, that is present on the posterior side. ठीक है, it will prevent excessive extension of the hip joint. ठीक है, इलियोफेमोरल लिगामेंट एक इंपॉर्टेंट लिगामेंट है जिसको लिगामेंट ऑफ डेग्लो भी बोला जाता है. इसके 3 प्रोजेक्शंस होती हैं. ठीक है, लिगामेंट की जैसे बेटा हम लोगों ने एल्बो जॉइंट में बात की थी ना कि एल्बो जॉइंट की लेटरल साइड के ऊपर लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है और मीडियल साइड के ऊपर मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है. और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की 3 प्रोजेक्शंस होते हैं. इस तरीके से आपके पास ये जो इलियोफेमोरल लिगामेंट है इसकी भी 3 प्रोजेक्शंस हैं और इसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज अ लिगामेंट ऑफ डेग्लो. ठीक है जी बच्चों, बात क्या समझ आ रही है participants? Yes, sir. Now, the iliofemoral ligament is going to prevent excessive external rotation of the hip joint, and the pubofemoral ligament, the last of the ligament, it is going to limit the abduction. ठीक है, जो हिप जॉइंट के बेटा डिसलोकेशन है वो मोस्ट कॉमनली इन 3 मूवमेंट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से होती है. When there is an excessive extension, abduction, and external rotation, there and the hip joint is at its vulnerable position, okay, to get dislocated in the posterior direction. So that is why all these 3 ligaments, they are going to prevent or they are going to provide stability in these 3 positions. That is the external rotation, abduction, and the extension. ठीक हो गया. आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स की बेटा हम बात कर चुके हैं कि फ्लेक्शन होगी तो पोस्टीरियर ग्लाइडिंग होगी, एक्सटेंशन होगी तो एंटीरियर ग्लाइडिंग होगी. इसी तरीके से जब एबडक्शन होगी तो इंफीरियर ग्लाइडिंग होगी और जब एडक्शन होगी तो सुपीरियर ग्लाइडिंग होगी. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है दैट इज द लंबोपेल्विक रिदम. ठीक है, जिस तरीके से हम स्कैपुलोह्यूमरल रिदम के बारे में बात करते हैं सेम इसी तरीके से देयर इज अ लंबोपेल्विक रिदम. A lambopelvic rhythm is a coordinated or a synchronized functioning of muscles between the lumbar region and the pelvis itself. ठीक है, और ये तब होता है जब आप की स्पाइन जो है वो बेंड कर रही होती है. ठीक है, और वो कहते हैं कि सीक्वेंशियल फ्लेक्शन जो होती है वो किस तरीके से होती है कि सबसे पहले आपका हेड फ्लेक्स करता है, उसके बाद जब आपका हेड और नेक फ्लेक्स करती है और उसके बाद ट्रंक फ्लेक्स करना शुरू करती है, तो जो आपके पेल्विस होती है ना बेटा वो टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वो करने के लिए काउंटर एक्ट करने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को स्टेबलाइज करने के लिए जो पेल्विस है बेटा वो पोस्टीरियरली शिफ्ट हो जाती है. जब आपके हेड और नेक और जो अपर ट्रंक है जब ये फ्लेक्स करेगी फॉरवर्डली तो जो पेल्विस है ठीक है ये ऑटोमेटिकली क्या करेगी, पोस्टीरियरली शिफ्ट कर जाएगी टू मेंटेन दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, इसी कोऑर्डिनेटेड फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कि देयर इज अ लंबोपेल्विक रिदम दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट. लेकिन जैसे ही अपर ट्रंक जो है और आपकी अपर ट्रंक के बाद जब पूरी के पूरी ट्रंक जो है वो फॉरवर्डली फ्लेक्स्ड होती है तो अल्टीमेटली जो पेल्विस है वो भी फ्लेक्स होना शुरू हो जाती है ऑन टू द हिप जॉइंट. ठीक है, अब जितनी भी स्टेबिलिटी है वो सारी की सारी कौन दे रहा होता है, हिप जॉइंट प्रोवाइड कर रहा होता है. ठीक है, यहाँ तक बेटा बात की समझ आ गई. अच्छा जी पार्टिसिपेंट्स, यहाँ तक बात की समझ आ गई है. यस सर. Yes, sir. ना वो कहते हैं कि जैसे जैसे आप फॉरवर्डली फ्लेक्स करते जाओगे तो अल्टीमेटली आप सबको पता है कि जो जितने भी बैक के मसल्स हैं ठीक है, अगर तो नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी होगी मतलब हैमस्ट्रिंग्स की, इरेक्टर स्पाइनाई की, लंबर एक्सटेंसर्स की, ठीक है, इसके अलावा थोरेसिक में मोबिलिटी होगी.
ठीक है। तो तमाम की तमाम फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी ड्यूरिंग कंप्लीट फ्लेक्शन, मींस टू से कि आपके तमाम जो मसल्स हैं और जो लिगामेंट्स हैं ये टाइट हो जाएंगे, ठीक है ना, ड्यूरिंग फ्लेक्शन। और जितने भी फेसर जॉइंट्स हैं ये क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट कर जाएंगे ड्यूरिंग फ्लेक्शन, ठीक है। और वो कहते हैं कि जैसे ही आपकी जो लिगामेंट्स, ये जितने भी लिगामेंट्स हैं ये टाइट होना शुरू हो जाते हैं, तब ही आपके पेल्विस जो है ये इंटीरियरली रोटेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद वो कहते हैं कि जी पैथो डिफरेंट पैथोमैकेनिक्स हम आगे डिस्क्राइब की हुई हैं, जिसमें से एक तो है डेट इज द लेटरल पेल्विक टिल्ट, ठीक है ना। आप सब लोगों को पता होगा पेल्विस ड्रॉप, हम लोग आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा कि देयर इज अ पेल्विस ड्रॉप, ठीक है। मीन्स टू से कि whenever there is an asymmetry in the frontal plane, ठीक है। Now the frontal plane asymmetry is due to the loss of, or you can say that due to paralysis of any of the hip abductor muscles, ठीक है। अगर लेट्स से ग्लूटियस मीडियस की वीकनेस है तो इट कैन रिजल्ट इन pelvic ड्रॉप, और इस pelvis ड्रॉप की वजह से आपके पास लेटरल pelvic टिल्टिंग हो सकती है। तो ये चीज है, ये मोस्ट कॉमन रीजन है pelvic ड्रॉप से रिलेटेड pelvic टिल्ट की। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज द tightness of the quadratus lumborum, ठीक है ना। quadratus lumborum is actually provide stability to the spine, ठीक है। और ये लेटरल साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है, यूजुअली पोस्टरोलेटरल साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है। और जब ये पोस्टरोलेटरल साइड के ऊपर एक्चुअली जब भी हम लोग मीन्स टू से कि आप कह लें कि वॉक है हमारी, या हमारी स्टैंडिंग है, या जो हमारा गेट है, गेट के वक्त quadratus lumborum और gluteus medius जो है, इनका एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होता है, एक बैलेंस होता है, जिसके थ्रू आपकी जो pelvis होती है वो जब आप क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं फुट को विद द ग्राउंड, ठीक है। तो आपकी जो वो वाली उस साइड की जो pelvis है, राइट साइड का फुट स्ट्राइक कर रहा है विद द ग्राउंड, तो उस साइड की जो pelvis है वो क्या करेगी, अपराइज करेगी, ठीक है। और जो दूसरे ऑपोजिट साइड की pelvis होगी वो स्लाइटली लेटरल साइड के ऊपर मूव करेगी, लेकिन दिस विल बी अ वाइस वर्सा एक्शन। और जैसे ही वो दूसरी pelvis, दूसरी साइड जो लेफ्ट साइड जो है, जब वो स्ट्राइक करना जा रही होगी, तो तब उस साइड की जो pelvis है वो थोड़ी सी टिल्ट कर जाएगी सुपीरियरली, बट दैट इज नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर quadratus lumborum जो है, ठीक है, ये टाइट होना शुरू हो जाए तो ये भी क्या करता है, pelvis को अपवर्डली लिफ्ट कर देता है। जिस साइड का quadratus lumborum टाइट हो रहा होगा वो उस साइड के pelvis को क्या करना शुरू कर देगा, अपलिफ्ट करना शुरू कर देगा। तो ये भी क्या करेगा, एक्चुअली लेटरल pelvic tilt प्रोड्यूस करे। सो जब तो pelvis एलिवेट करे उसको हम लोग कहते हैं डेट इज हिप हाइकिंग, ठीक है। और अगर pelvis जो है वो ड्रॉप कर जाए, या pelvis जो है वो लोअर हो जाए एक साइड से, तो हम उसको बोलते हैं कि डेट इज अ हिप ड्रॉप और pelvic ड्रॉप, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जिस साइड के ऊपर pelvic एलिवेट करी होती है उसके ऊपर हिप जॉइंट की एडक्शन हो जाती है, कंपनसेटरी। और जिस साइड के ऊपर pelvis ड्रॉप करी होती है उस साइड के ऊपर हिप जॉइंट की क्या होना शुरू हो जाती है, एबडक्शन होना शुरू हो जाती है उस साइड के ऊपर, ठीक है। अब मैंने जो pelvis ड्रॉप की कॉज बताई है वो बताई है कि देयर इज अ लॉस ऑफ और देयर इज अ पैरालिसिस ऑफ द ग्लूटियस मीडियस ऑन एनी साइड। उसमें क्या होता है कि अगर राइट साइड का ग्लूटियस मीडियस बेटा वीक हुआ है तो वो अल्टीमेटली लेफ्ट साइड के pelvis को क्या कर देगा, ड्रॉप करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो राइट साइड का ग्लूटियस मीडियस होता है वो ऑपोजिट साइड के pelvis को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है और मेंटेन करके रखता है उसकी पोस्चर, ठीक हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज द pelvic rotation, ठीक है। pelvic rotation ऑब्वियसली तब होती है कि जब आप किसी भी साइड के ऊपर रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो pelvic रोटेट करती है। और वो कहते हैं कि जिस साइड के ऊपर pelvis आपकी रोटेट करे उसके ऑपोजिट आपकी क्या करती है, ट्रंक रोटेट कर देती है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप ट्रंक को रोटेट कर रहे हैं टूवर्ड्स राइट साइड और टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो pelvis जो है वो ऑपोजिट साइड के ऊपर रोटेट करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जब pelvis की जो लेट्स से अनस्पॉटेड साइड, इफ यू आर रोटेटिंग ऑन द राइट साइड, ठीक है, तो अनस्पॉटेड साइड इसकी बनेगी लेफ्ट साइड pelvis की। बेटा समझ आ रही है यहाँ पे?
अगर आप राइट साइड के ऊपर रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, राइट लेग आपकी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, ठीक है, तो आपकी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड की जो pelvis है वो अनसपोर्टेड कहलाएगी, ठीक है। तो जब भी वो कहते हैं आपके pelvis अनसपोर्टेड साइड जो है वो बैकवर्डली रोटेट कर जाए तो उसको पोस्टीरियर रोटेशन कहते हैं, और जब वो फॉरवर्डली रोटेट कर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज अ एंटीरियर रोटेशन, ठीक है। बच्चों बात की समझ आई है? यस सर। Okay. Now, there is another asymmetry, that is the asymmetrical leg length discrepancy. Now, asymmetrical leg length discrepancy is occurring due to any of the following reasons. And the first, most common, is the scoliosis. If there is a three-dimensional deformity, it will eventually decreases the leg length, ठीक है, और it can decreases the length of one side, ठीक है। अब वो डिसाइड करना पड़ता है कि किस साइड की जो लेंथ है वो क्या करेगी, डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, अगर स्कोलियोसिस जो है वो राइट साइड का है, मींस टू से इफ देयर इज अ कन्वेक्सिटी, ठीक है, ऑन द राइट साइड, ठीक है, तो जो आपकी ऑपोजिट साइड की पेल्विस होगी, मींस टू से लेफ्ट साइड, वो क्या करना शुरू कर देगी, हाइक करना शुरू कर देगी, और अल्टीमेटली क्या होगी कि आपकी जो लेफ्ट साइड की जो लेग है, ठीक है, वो एक्ट करेगी एज अ शॉर्ट एंड लेग, ठीक है। हम उसको कह सकते हैं कि देयर विल बी अ लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। जी बेटा, बात की समझ आई है? जी सर। जी सर, समझ आ रही है। यहाँ पे उन्होंने ऑपोजिट लिखा हुआ है कि जी जिस साइड की लेग छोटी होगी उस साइड के ऊपर ड्रॉप हो जाएगी पेल्विस, ठीक है, सही है। और जो साइड बेंडिंग होगी ट्रंक की, वो अवे होगी फ्रॉम द शॉर्ट एंड साइड, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि कन्वेक्सिटी ऑफ द लंबर कर्व विल बी टुवर्ड्स द साइड ऑफ द शॉर्ट एंड लेग, ठीक है ना, जिस साइड की जो लेग है वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि नेक्स्ट पैथोलॉजी है अबाउट द कॉक्सा वेल्गा एंड द कॉक्सा वेरा, ठीक है। नाउ आप लोगों ने इसी तरीके से जीनू वेलगम और जीनू वेरम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें अगर एंगल ऑफ क्वाड्रिसेप एंगल की बात होती है जीनू वेलगम में और जीनू वेरम में, कॉक्सा वेल्गा और कॉक्सा वेरा में, एक्चुअली कॉक्सा वेल्गा एंड कॉक्सा वेरा आर द पैथोलॉजिकल टर्म्स वी कैन यूज फॉर द हिप जॉइंट, ठीक है। अब कॉक्सा वेल्गा में अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, दैट इज द एंगल बिटवीन द फेमोरल नेक एंड द शाफ्ट ऑफ द फेमर, ठीक है, अगर ये एंगल इंक्रीज हो जाए 125 डिग्री से तो हम लोग इसको बोलते हैं कि जी दैट इज द कॉक्सा वेल्गा, ठीक है। और अगर वो कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो डिक्रीज हो जाए बिटवीन द फेमोरल नेक एंड द शाफ्ट ऑफ द फेमर, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज द कॉक्सा वेरा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जी अगर इफ देयर इज अ कॉक्सा वेल्गा ऑन वन साइड दैट इज ऑन द राइट साइड, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो कॉक्सा वेल्गा है वो उस साइड की लेग को लेंथ में इंक्रीज कर देता है, ठीक है, और ऑपोजिट साइड की लेंथ जो है लेग की वो शॉर्टर हो जाती है, ठीक है, कॉक्सा वेल्गा। और इसी तरीके से जो कॉक्सा वेरा है, ठीक है, वो क्या करेगा उस साइड की, लेट्स से देयर इज अ राइट साइडेड कॉक्सा वेरा, तो वो उस साइड की लेग लेंथ को क्या करना शुरू कर देगा, इन डिक्रीज करना शुरू कर देगा कॉक्सा वेरा, सेम साइड की लेग को, ठीक है। Now, the next pathology is about the anteversion and the retroversion, or we can say that the pathologies of the angle of angle of inversion or angle of rotation between the two components, that is the or the angle of torsion, ठीक है। angle of torsion क्या था कि जी एक एंगल बन रहा है between the femoral condyles and the neck of the femur, इस एंगल को अगर हम मेजर कर लें तो हम इसको क्या कहते हैं कि that is an एंगल ऑफ टॉर्शन, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर ये जो एंगल ऑफ टॉर्शन है, ठीक है, ये ज्यादा हो जाए तो इसको हम लोग एंटीवर्जन बोलते हैं, और अगर वो ये कहता है कि एंगल ऑफ टॉर्शन कम हो जाए तो हम लोग को इसको कहते हैं कि दैट इज अ रिट्रोवर्जन, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि एंटीवर्जन जो है इससे जीनू
वेलकम भी हो सकता है और प्लस प्लेनस भी हो सकता है। जबकि जो एंटी वर्जन है एक साइड का, ठीक है, वो यूनिलेटरल लेग प्रोड्यूस करता है ऑपोजिट साइड, सेम साइड पे, ठीक है ना। जी बच्चों, यहाँ तक बात की समझ आ गई है? पार्टिसिपेंट्स, जी सर। जी सर बोले। बच्चों बात की समझ आ गई है? यस सर। Okay, so that is all about today's lecture. That is the hip joint, और next time हम लोग इसके बारे में पैथोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हिप जॉइंट की पैथोलॉजीज के बारे में, ठीक है। और बच्चों थोड़ा सा इसको ना पढ़ कर आइएगा थेरापेutiक्स की बुक में से, क्योंकि आगे जितना भी जो लेक्चर है, ठीक है, वो फिर आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए एक दफा पढ़ कर आना है ये वाला लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो पढ़ कर आइएगा, ठीक है, थेरापेutiक्स की बुक में से। ओके सर कल कितने एमसीक्यू आएंगे? बेटा 50 MCQs। ओके सर। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। एनी क्वेश्चन? बेटा आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे आयशा मुजीब बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रही हूँ आपने सारे लेक्चर्स में से इक्वल डिवीजन किए एमसीक्यूज से, यहाँ पे जो क्विज के बाद वाले हैं उनमें से आता है। क्विज में से होंगे 5-6 हो जाएंगे 10। उसके बाद वाले से बस ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्विज के बाद वाला। सारा ही बेटा इंपॉर्टेंट है। सर इतना ज्यादा एकदम वो सारा इकट्ठा कर रहे हैं तो वो सारा मर्ज हो रहा है। बेटा साथ साथ पढ़ते हैं ना, इसीलिए तो कहा जाता है कि बेटा साथ साथ पढ़ें। बेटा इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर कल पेपर्स में सिनेरियो बेस्ड पे क्वेश्चंस होंगे? एमसीक्यूज हैं बेटा। सर एमसीक्यूज की बात एमसीक्यूज करी, हो सिनेरियो सकते बेस्ड हैं, होंगे? हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पता नहीं, हो सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह सर हाफिज। क्या हो सकते हैं दोबारा बता दीजिए। एमसीक्यूज हो सकते हैं बेटा, लाइक क्लिनिकल रिलेटेड एमसीक्यूज हो सकते हैं। अगर किसी चीज का आप लोगों को दिया गया रेफरेंस, शॉर्ट नहीं है, दे आर जस्ट एमसीक्यूज, ठीक है, और वही होंगे, ठीक है बेटा। ठीक है सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।